You know, whenever I see him, I get very excited. कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहता है. जिस तरह ये बात भी करता है यार, he's super. एक तो you know you're a super fan of his father. जिस तरह वो बात करते थे, तो उसका इसका भी बात करने का ढंग वैसा है, और मेरा भी बात करने का ढंग ऐसा ही है. And almost seems like in the last 10 odd years we've grown together, had films come out, moved out, come back in, had hiatuses and all. Adyan, Suman, brother, thank you so much for joining me. कैसे हो? Good. Yeah, you're looking fantastic. I think लॉकडाउन में किसी की बॉडी बने ना बने, तुम अपनी बॉडी बना रहे हो, मुझे लग रहा है लॉकडाउन में बैठकर. मैं तभी ब्रदर डिसाइड किया मैं स्टूडियो में आऊं और लाइटिंग के साथ शूट करे, और कुछ नहीं होगा. No, honestly, just genuinely, seriously, you're looking very nice, genuinely. But you are looking very good. Your character Ting is unbelievable, brother. Your whole setup of being crazy, not crazy as a person also, is very difficult to sort of portray on screen. You're fighting for a screen time. बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि what all is Adyan doing right now. Well, Ashram is a new show that's come out. It's got Bobby Deol in it. Prakash Jha's made it. सबसे पहले तो प्रकाश झा जब तुम्हें yes करता है, सबसे बड़ी वो मोहर आपके टैलेंट की ये लग जाती है. So tell me about that, yeah. No, absolutely, yaar. I think you've seen my career. I think you've been a part of it, and you've been very kind enough to always have me on your show. मैं हमेशा तुम्हारे शो पर आया हूँ. तुमने हमेशा अच्छी बातें कहीं आगे पुश करने की कोशिश की है मुझे. पिछले 10 सालों से कई दरवाजे खटखटाने की कोशिश किया, as filmy as it sounds, and finally Prakash ji decided to sort of open his doors for me. और दिशा झा मेरी बहुत अच्छी मित्र है, and I used to always be in touch with her. And जब प्रकाश जी कुछ भी, because people don't know this, but the first person I assisted, मेरी पहली नौकरी प्रकाश झा प्रोडक्शंस में थी, जहां पर मैं सेकंड एडी था फॉर अ फिल्म कॉल्ड दिल दोस्ती एक्सेट्रा. जब मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ के आया था न्यूयॉर्क से, तब मैंने इन्हें ज्वाइन किया था. फिर बहुत जल्दी मुझे ब्रेक मिल गया, सो आई हैड टू मूव आउट, बट आई वाज ऑलवेज इंडेटेड टू प्रकाश जी. और आज मैं उन्हीं के सामने बैठकर जो है, मुझे उन्होंने मौका दिया टिंका सिंह का किरदार प्ले करने के लिए. एंड आई रिमेंबर I called up Disha and I said, Disha, listen, it's been about 2-3 years और ज्यादा काम बाहर नहीं आया है. मैंने 3 फिल्में की थी 2016 में, नए लोगों के साथ थी. कुछ लोग पैसा खा गए, कुछ लोगों ने घर खरीद लिए, गाड़ियां बना ली, फिल्में नहीं बनाई. लेकिन मेरा नाम डूब गया इसमें कि मेरी फिल्में नहीं चली. बट अनफॉर्चुनेटली अब जो भी किस्सा है, बट आई सेड Disha, I've had a web release with Ina Khan, which is Damage 2, which is done decently well. I had some great reviews as an actor. But वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया because the platform was relatively smaller. And Disha said, she said, listen, I can only take you to Baba. She calls him Baba. I said, I can only take you to Prakash ji. उसके बाद Adyan, it is your talent and the look test that they do with you, and then Shruti Mahajan was the casting director. And I wasn't, Sajid, to be very honest, used to doing look tests and auditions. And now that I started getting into it, and I said, you know what, छोड़ो अपना ईगो को, कब तक घर बैठे रहोगे. काम की बड़ी जरूरत है अभी, और सही काम करना जरूरी है, छोटा या बड़ा जो भी हो, पर काम जरूरी है. And I went up to Prakash ji. Luckily, last 2 years में जो मेरा म्यूजिक था, which has done phenomenally well for me. Yeah, your YouTube channel is actually, शायद people don't know this, that he's actually sung so many tracks there, and his YouTube channel has actually kept him very in the limelight. A different kind of digital audience has actually come in. और लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि the audience on Instagram is not the only digital audience that is there. There is a hugely different audience that is there on YouTube as well. Huge, and people perceive you absolutely different. और YouTube पे जानना जरूरी है. हम जब you look at stars like Ashish Chanchalani, and you look at प्राजक्ता कोहली, भुवन बाम, इतने सारे हैं यार. भाई भुवन बाम, they're huge stars. मतलब आज जब हम अपनी वीडियो डालते हैं तो हम मरते हैं यार, थोड़े से गूगल एडवर्ट डाल देते हैं, थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं, हम मरते हैं यार 2, 4, 10 million. The moment these people put out a video, Carrie Minati, you're looking at 20 million views a day, so you understand the stardom, the power that YouTube has. Behral, so I showed Prakash ji, and he loved the music videos because I've directed them as well, and he saw all of them, and he said, तुम्हें जो है मैं ये किरदार दूंगा, लेकिन तुम्हें लुक टेस्ट करना होगा दिन इसका, but I will do whatever I can. And then I did my look test, and the next day I got a call, and I couldn't believe it यार, because मेरे लिए बहुत बड़ा break था, because all these years लोग कहते हैं कि एक स्टार किड के लिए बहुत आसान होता है, उसके फादर स्टार हैं तो वो सब लोग फोन करते, काम मिल जाता है. बट आई थिंक आई हैव बीन अ ह्यूज एग्जांपल बीइंग द सो कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, जहां पर बीइंग अ स्टार किड मुझे काम लोगों ने नहीं दिया. Especially when I had done decent amount of work. I wouldn't say कि मेरा work profile बहुत अच्छा रहा है, but decent रहा है. Where Raj 2 was a successful film, लोगों ने appreciate किया, जशन ठीक थी, Heartless ठीक ठाक थी, music किया,
कुछ ना कुछ मैंने अपने आप को मैं करता रहा ताकि मैं जिंदा रहूं, और लोगों ने अप्रिशिएट किया, भले ही छोटे लेवल पर किया। और आज जब प्रकाश जी ने मुझे रोल दिया, वो बहुत बड़ा ब्रेक था मेरे लिए, पर मैं डरा हुआ था। जब मैं शो किया और जब मुझे पता चला कि आश्रम विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Hmm. so it will be Ashram season 1 part A and then season 1 part 2. Hmm. And then I realized this huge concert of Tinka Singh has been shifted. And I said, no, I'm like, shit, I was supposed to come in the fourth episode. फोर्थ एपिसोड में यू एंटर, यस. 7 एपिसोड पे रहता हूँ, लेकिन वो डिले होके 8 एपिसोड पे चला गया. And I said, यार शिट. और वो भी मैं आता हूँ सिर्फ 15 मिनट के लिए. अब लोग नोटिस करेंगे नहीं करेंगे, मैं इतने दिनों से लोगों से कहते आ रहा हूँ, पीआर में कहते आ रहा हूँ कि मेरा बहुत अच्छा रोल है. इनफैक्ट ये मैं बोलना चाहूंगा कि आई सॉ योर होर्डिंग द अदर डे एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आल्सो कि शुरुआती तौर पर क्योंकि चंदन था, बॉबी इज ऑलमोस्ट ऑन अ कमबैक ट्रेल एज फार एज डिजिटल इज कंसर्न्ड, एंड बॉबी के भी करियर वेरी सिमिलर है. सो आई एम लुकिंग एट प्रकाश जी मेकिंग दिस आल्सो, सो एवरीवनस ट्राइंग अ डिफरेंट टेंजेंट हियर. फिर मैं जब तुम्हारी फोटोग्राफ देखी मैंने कहा ओह सो ही इज बैक इन. देन लाइक हाउ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर कुक्कू कुबरा चौथे एपिसोड में आई थी सेक्रेट गेम्स के, मैंने कहा यार पहले 2-3 एपिसोड मैंने वेयर इज द बॉय, कहां है. फिर जब तुम आए मैंने कहा पीपल एक्चुअली डू हैव सम पेशेंस विद डिजिटल. वो इमीडिएटली जज नहीं करते हैं. जैसे फिल्मों में क्या होता है, आपको पता है कि 2 घंटे की फिल्म है, अगर लड़का 1 घंटे 15 मिनट बाद आ रहा है तो आप बोलते हैं यार बचा क्या है इसके लिए. लेकिन डिजिटल इज नॉट दैट प्लेटफॉर्म. तो आई थिंक ये इनसिक्योरिटी एज एन एक्टर थोड़ी कम है, फिर भी हो सकती है. फिर भी थी, बिकॉज आई टेल यू व्हाई, बिकॉज ऑफ द पार्ट बीइंग शिफ्टेड. तो मुझे लगा यार आर्ट में लोग जज कर लेंगे, बोलेंगे यार ये तो छोटे रोल के लिए आया है इसमें. बट देन Salil, I understand one thing, yaar. I have understand one thing so beautifully in an ensemble cast like this, कि no matter whether you have one scene, one shot, if you are able to, if you're sincere और आपकी connection जनता के साथ हो गई, nobody can stop you, bro. And it is honestly from the bottom of my heart, and I'm saying it genuinely, it has been so overwhelming, the response to Tinka Singh. It's unbelievable. People message me saying कि अगर टिंका सिंह का रोल सेकंड सीजन में नहीं बढ़ा गया तो we will boycott प्रकाश जावड़ेकर प्रोडक्शन. ऐसा मत करो भाई. And people I don't know, because you know my life and you know my journey, the amount of negativity that I have faced in terms of my personal life, relationship. I want to say sorry to you for a lot of people जो इतने सालों से तुम्हारे पीछे पड़े थे. 2 लोगों को आज मैं सॉरी बोल रहा हूं, एक तुम और एक ऋतिक रोशन है. बहुत सारे लोगों को हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो प्रहार तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे शायद फेस किया होगा, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, दुनिया ने आज फेस किया है और ये फील किया है. सो ये भी एक अलग जर्नी रही है. मैं यही कहना चाहता हूँ, you don't have to say sorry because you're a very dear friend of mine and I love you honestly, and मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन रहा है and I always been grateful that you supported. मेरे को मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, बिकॉज आज सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है. आज कोई किसी को थोड़ा सा भी प्रोपेल करने के लिए अगर कोई इतना सा भी हेल्प कर दे, मेरे लिए वो इतनी बड़ी हेल्प है. बिकॉज मैं जानता हूँ कि जब मैंने फोन्स किए, कॉल्स किए, जब पीआर वालों ने बोला भाई तुम बी ग्रेड हो, तुम ए लिस्टर नहीं हो, तुम्हें हम नहीं छापेंगे, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं. And it hurt me to a point where there was a point where I lost my confidence. But जो जैसे you are there, कुछ लोग हैं जिन्होंने बोला कि you always called me to your show. You could have said नहीं भाई, right now he's in the middle of controversy, let's not do it. But you've always been kind and that sort of motivated me कि नहीं भाई, कुछ लोग हैं जिस दिन सही काम आएगा लोग शायद तुम्हें definitely appreciate करेंगे. And that exactly. But what does your dad say about this? आपके पिताजी भी उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया था 50 की, उन्होंने बॉडी बना ली थी, सिंगिंग करने आ गए थे. आई मीन मतलब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ तुम्हारा कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि मेरे बचपन से अगर मेरे सामने 2 होस्ट थे दैट चेंज माय लाइफ. वन वाज अहमद रशाद जो एनबीए के होस्ट थे एंड वन वाज योर फादर. आज तक शेखर सुमन के लेवल का कोई एंकर नहीं आया है. मतलब कि इवन द करंट जनरेशन दैट हैज वेरी गुड एंकर्स लाइक कपिल शर्मा एंड ऑल, लेकिन शेखर जी जो करते थे देयर इज नोबडी दैट कम्स क्लोज टू हिम. तो मुझे लगता है कि योर फादर हिमसेल्फ हैज आल्सो रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ, चाहे वो एक्टिंग की बात हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो बॉडी बनाने की बात हो. सो यू योरसेल्फ हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर फैमिली आल्सो, जो नहीं सुनते लोगों की बात. अभी भी जिस तरह वो बड़े आउटस्पोकन है अबाउट सर्टेन इशू दैट्स गोइंग अराउंड इन द कंट्री, अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव टोल्ड हिम सर आप क्यों बोल रहे हो, आप चुप रह जाओ ना. बट ही डजंट लिसन एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. मुझे लगता है कि उन्होंने तब नहीं किसी की सुनी थी और आज भी किसी की नहीं सुन रहे हैं, और ये अच्छी बात है. शायद तुम भी इस रास्ते पर चल रहे हो. नहीं बिल्कुल. आई थिंक एज फार एज ब्रदर डैड इज कंसर्न, बहुत लोगों की इंडस्ट्री से फोन है, सर आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जिनका करियर का क्या होगा. माय डैड वेरी ही सेड कि जो उसका करियर बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो वो कुछ और कर लेगा मेरा बेटा, है ना. जनता है उसके साथ और अगर उनको सपोर्ट करना होगा वो करेगी उससे. लेकिन जो ट्रूथ है, जो मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज
इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं था सुशांत सिंह राजपूत के पीछे सीबीआई इंक्वायरी की मांग करने का। सिर्फ हम लोग, स्पेशली मेरे फादर यार, एट द टाइम्स ऑफ कोविड, व्हेन यू लव योर फैमिली यू डोंट अलाउ देम टू ट्रैवल, एंड आई फॉट विद माय फादर एंड आई सेड प्लीज भाई मत जाओ बिकॉज़ इट्स नॉट सेफ। आई सेड तुम कर रहे हो, शायद कोई तुम्हारे लिए नहीं खड़े होगा कल यार, पर तुम क्यों कर रहे हो? He said नहीं, आई वांट टू डू इट फॉर माय, बिकॉज़ माय हार्ट सेज, because at the end when I lost Ayush, I understand the pain of a father. And when he went to Patna, there was no conversation between Sushant's father and my father. They were quiet. But एक जो बोलते हैं ना silent support करना, एक सहारा देना, that's the only reason why he went. उसके बाद भी आने के बाद there are people who said अरे नहीं, शेखर सुमन जो है वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर हम सब हंस रहे थे कि शेखर जी को इतना मेहनत और रिस्पेक्ट और नाम कमाने के बाद आज किसी की डेथ को लेकर यूज करके पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? अगर उन्हें करना होता तो वो वैसे ही कर लेते। Do you now think that after Ashram you're going to get a few more calls because also Prakash Jha there and plus also this? I already got a few. I have already started getting calls already because you know how the industry functions. Let's not lie about it. थोड़ी सी अगर एक बात हवा बनती है या थोड़ा सा भी सक्सेस मिलता है तो फिर सबके वही कॉल जिन्होंने आपके कॉल इग्नोर किए थे आने शुरू हो जाते हैं। मैं प्रोडक्शन हाउस का नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और मैंने कुछ साइन नहीं किया, सो आई कांट कंफर्म। उनके भी फोन आए, वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, जो जिन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। सो ऐसी चीजें अब आ रही हैं एंड नो मैलिस यार। सी आई देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई यूज्ड टू फील वेरी एंग्री कि मेरा वक्त आने दो, मैं सबको दिखाऊंगा, बट अब वो एज विद एज एंड विजडम वो अब निकल चुका है मेरे अंदर से। यहीं रुक जाओ भाई, ना तुम्हारी एज हुई है और ना अभी विजडम लाने की जरूरत है। We'll take a short break and come back. The very young Adhyan Suman, I would say, the beauty of the current world is we keep getting a chance to make a comeback, and every time you come back, and it's if a short burst is also enough to sort of impress you, आपकी गाड़ी दोबारा चल सकती है। We'll take a short break and come back on Star Stop. Don't go anywhere. You're back with me, Salil, on this, this different version of Star Stop. It is going to be like this, I think, for 6 or 7 months. A lot of people abroad were asking me, but the shootings have started in London and America, yes, but not so much in India. And especially meeting with artists, which is primarily, what B4U initially is. That's going to be a while, but this is great. Adhyan, thanks so much for joining me on the show once again. Ashram, his latest offering is out. If you all have seen it, yep. Actually, Bobby Deol also making a bit of a comeback now. He himself shared a lot of personal anecdotes with 83, his last show that came out. He said he'd got into alcoholism. He had said, I don't have the will to come back and fight. Salman Bhai tried to bring him back with Race 3, body बना दी थी. मैंने बोला वाह यार क्या body बना ली है. कहता लेकिन सलिल फिर भी कुछ हो नहीं रहा था मेरे साथ में. So every artist is going through a very big upheaval process. When you were shooting for Ashram, did you have a lot of meetings with this? Because a lot of your sequences, even which are going to come or which are going to be say part of a season, वहाँ पे भी इतनी interactions शायद नहीं हुई होंगी. So who did you interact a lot with? I think I spent a lot of time with Chandan Roy Sanyal. I spent a lot of time with Bobby sir. I spent a lot of time with Prakash ji. Brother, the best part about being on set of Ashram was there was no hierarchy. वहां पे हमें ये नहीं बोला जाता था बेटा तू बी ग्रेड एक्टर है या तू लेसर सक्सेसफुल है और बॉबी देओल बड़ा स्टार है तो तुम यहाँ बैठोगे, यहाँ ऐसा नहीं है. I think the most beautiful part was that every actor, whether small, big, technician, we all sat together, we all spoke, and we all discussed, and we all, and as you very rightly said कि बॉबी सर के साथ भी बहुत कुछ हुआ है और वो बाहर आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए. And I used to discuss with him, and I used to tell him, बॉबी सर कि आप जो है थोड़े से एक इंट्रोवर्ट हैं, आप ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट लोग सुनना चाहते हैं आपकी स्ट्रगल की कहानी, लोग जानना चाहते हैं कि आप जो आपकी शुरुआत इतने बड़े लेवल पर हुई आपने. I was actually surprised when I went through his CV, the big films that he has done. He's done some big films. लोग सिर्फ बरसात करते रहते हैं. मैंने कहा भाई बहुत सारी फिल्में की हैं यार. बहुत फिल्में की हैं जो हिट रही हैं उनकी फिल्में. So I understand his struggle. मेरा तो कुछ भी नहीं है उनके सामने. I did 7-8 films. He had like successful films. And then he told me, and he told me one line which really hit me when he said कि मेरे बेटे ने जब मुझे देखा कि डैड कि आप कभी घर से बाहर निकल के काम नहीं करते हैं क्या? And I think that thing hit him so bad, and he was very teary eyed when he told me that, and he said, boss, I have to, man, I'm 50, I'm turning 50, I have to do something for my family. And he made that effort, and I saw him, man, on set. उनकी जो शुद्ध हिंदी थी आश्रम में, because बाबा जी प्ले कर रहे हैं, हिंदी शुद्ध थी, difficult lines थे यार. वो 3 महीने से रिहर्स कर रहे थे और सेट पे हम बैठे
सेट पे बैठकर वो रोज लाइनें याद करते थे अपने, दूसरे एक्टर के भी करते थे और अपने भी करते थे बैठकर. सो आई हैव सीन कि he is not this and he's so disconnected from his stardom that he gets, he brings along, disconnected from his Deol surname. He's just a normal ordinary boy, a man who wants to work hard and still a child at heart. He's done a great job. And Prakash ji ki jo very interesting casting also. You know, it's a very interesting setup क्योंकि भारत में आजकल गॉडमैन, बाबा जी, इन सब के बहुत सारे जो पहले टर्मिनोलॉजीज अंधाधुन, ब्लाइंड, दे टू एक्सेप्ट, आजकल क्वेश्चन बड़ा करते हैं. सो दिस इज अनदर वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ, जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ये करप्ट भी हो सकते हैं, ये दुनिया जो है एग्जिस्ट करती है, ये सिर्फ कहानियों और सपनों में नहीं है और सिर्फ कोई यूपी के फार ऑफ छोटे से कोने में नहीं हो रहा है, ये हमारी दुनिया को टच कर चुका है. I have to tell you one story if you give me 2 seconds just to tell you my story, because ये बहुत ही एक relatable subject मेरे लिए इसलिए था because ये गॉडमैन जो है हमारे देश में, हमारे कल्चर में बहुत एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली यू नो ह्यूमन बीइंग्स जिनके अंदर बहुत डर, और यूजुअली हम सब डरे हुए रहते हैं भाई हमारा क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा. वी यूजुअली गो टू अ पंडित, यूजुअली गो टू अ गॉडमैन, बाबा जी सर पे हाथ रख दीजिए हमारा कुछ हो जाएगा. मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि यू नो जब कोई भी दरवाजे नहीं खुल रहे थे तो मैंने सोचा यार मैं कुछ तो, मतलब इंसान ना हर एक छोटी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है अपने लिए, मैं कुछ तो मैं ट्राई कर ले, मैं पूजा कर लेता हूँ, मैं बाबा जी से मिल लेता हूँ, वो हाथ रखेंगे तो मैं स्टार बन जाऊं. वो इनसिक्योरिटी में, और बेवकूफी नहीं कहूंगा, अपनी इनसिक्योरिटी कहूंगा, मैंने वो हर चीज ट्राई की है. There was an experience of mine that I had with the Babaji who I met, and there was this huge line when I went to meet him. बड़े बड़े businessmen, politician. फिर मेरा मौका आया, मैं बैठा नीचे बैठा, अच्छा बेटा तुम्हारा नाम अध्ययन. That he did something on my head. He put his hand in a bowl and वो गणेश जी का locket. And I said, shit, man, this is crazy. And bro, I'm not kidding. It was like mad magic, okay? And I was like, this is amazing. अब मुझे पता तो magic था, but ये कमाल है. Then he said कि बेटा मैं तुम्हें अहमदाबाद बुलाऊंगा, हवन करूंगा, उसके बाद यू विल नेवर लुक बैक इन योर लाइफ. यार मैंने डैड को, एंड डैड यूजुअली जो है अंधविश्वासी नहीं है, सब में इतना बिलीव नहीं करते, वो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं. ही सेड अभियान, इफ यू वांट टू ट्राई दिस आल्सो, हवन ही है, ठीक है, इट्स गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, गो एंड प्रे, नो प्रॉब्लम. आई वेंट देयर. रात को 2:30 बजे किसी फॉरेस्ट में जो है हवन रखवाया गया था. बात कर रहे हो? तो मैं गया अपना, हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ ब्रो. So I went and I sat there and I turned around. मैं उनका नाम नहीं लूंगा because he's no more. He's a very big politician who passed away. And I looked at him and I said यार ये क्या है यार, इतना बड़ा politician मेरे बगल में बैठा हुआ है, ऐसे हो क्या रहा है. ऐसे भाई फिर तो बड़े influential होंगे भाई, होंगे ही. उन्होंने फिर बोला भाई मैं कुंड में पानी डालते डालते आग लगा दूंगा. उन्होंने कुंड में एक बड़ा सा कुंड था, उसमें कुछ भी नहीं था ब्रो, खाली कुंड था. पानी डालना शुरू किया लोटे से और डालते डालते जक करके आग लगा दी यार. मैंने बोला ओ भाई, इन्होंने तो फायर से आग, मतलब पानी से आग लगा दी, मतलब ये तो भगवान के अवतार निकले यार. और फिर पूजा खत्म हुई और उन्होंने बोला बेटा आज के बाद यू विल नेवर लुक बैक. आई जस्ट गॉट फूल्ड कि भाई वो मैं ये कर दूंगा, वो मैं वही तो बोल रहा हूँ, 6 साल तक काम नहीं था उसके बाद मेरे पास. The most beautiful thing happened to me, which I have to share because you know I'm sure it'll reach out to so many people. आश्रम के 1 महीने पहले जब मैं बहुत ही I went through depression, but I got out of it. But what was left inside was anxiety, जो एक बीमारी है, जो बहुत से लोग जो हैं इसको फेस करते हैं. उनको लगता है कि एंजाइटी एक छोटी बीमारी है, लेकिन एक बहुत बड़ी बीमारी है ब्रो मेरे लाइफ में, which I go through almost every single day, where I start feeling breathless, whether I'm happy or I'm sad. It is because of all the attacks I had when I was going through my depression phase. उससे लड़ते, and I was sitting at home and I was telling my father, I said, I'm not feeling well. I don't feel fine. Get me, you know, मेरा checkup करा लो. I have done my blood test. सब कुछ करा लिया मैंने, but I was fine. Dad said, look, it's all in the brain. The day your career starts, you know, doing well, everything will fall into place, Adhyan, because you're constantly for the last 5-10 years thinking whether your work is going to happen or not. And I was sitting and my father came in and he said, guess who called? I probably thought कि किसी बड़े producer या director का phone आया होगा, शायद मेरा एक दरवाजा खुला हो. But he said, Shri Ravi Shankar has called you and he wants to have a conversation with you. And I said, 1 second. I said, it could be a prank call. Why will Shri Ravi Shankar call me? Because मैं A उनको follow नहीं करता हूँ. B मुझे क्यों phone करेंगे? भाई मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ. मुझे क्यों phone कर रहे हैं? He you know, you've seen Ravi Shankar ji having conversations with all the big stars and stuff. I said, मुझे क्यों phone करेंगे? And
I got on call with him at 5:30 in the evening. I have my video, which I'll share it with you. I'll send you the photo. And I was just sitting there asking. I said, Guruji, मुझे क्यों phone किया आपने? He said, look, I know that you are worried. I know that you are scared. मैं सिर्फ इतना बोलने के लिए अध्ययन तुम्हें फोन किया है. तुम्हारा करियर में सब अच्छा होगा. Everything will be fine. मैं तुम्हें क्रिया सिखाऊंगा, breathing exercises. उसको सिर्फ follow करो. सब अच्छा होगा. I swear he said that, and in 2 minutes he cut the call, and I see the changes happening in my life because I started following his breathing exercises. Because he's not God, but he taught me all the wisdom that he has gathered in the last couple of years, and he shared that with me. And I realized one thing कि emotionally if you're not stable, आप यहाँ से centered नहीं है ना, तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं. And that is something that I've tried to win over my mind. ये यहाँ से सब कुछ यहीं से. अरे वो बोलते हैं ना योगा सही होगा भाई, योगा सिर्फ ब्रीदिंग है, तो तुम्हें वही करना है. अच्छा, हाँ वही कर रहा है bro. before I take your leave, there's a lot of things that you'll be planning. I remember your father and you had a very good partnership where you made a film together. वो involved थे. Are you planning to do something like that? Because a lot of platforms now will say, why don't you produce? Why don't you make a show? बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, पैसों की तो कमी नहीं है, contacts बन जाएंगे, acting है, तो why not pitch? So you've done that, you know what the production is. तो तुम किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो? क्यों नहीं प्रोड्यूस करते कुछ? नहीं अभी आई फील ब्रदर सही वक्त है अभी आने का. एंड इनफैक्ट हम वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट 2-3 स्क्रिप्ट्स राइट नाउ. और as you very rightly said, the good part is that OTT is being more thingy towards receptive towards newer actors or actors who probably had a talent, hadn't done well in films, but they're giving them more opportunities right now, and I'm very grateful. अरे मेरे को किसी ने बोला था, I'll tell you, भूले बिसरे लोग और एक्टर्स को ओटीटी ने वापस खड़ा कर दिया है. उस कैटेगरी में मैं भी आया था. मुझे बोल रहे थे सलील भाई आप भी भूले बिसरे ही हो. So it's but it's true. When you had done the negative role in Mohit's film, I thought you were very menacing and very natural. And मैं ऐसी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बैठ के. I'd seen it again, and I'm saying it was a short role, but then I noticed you in that short role, bro. And you understand the politics and everything that goes in the groupism, the campism, and उसमें वो अलग ही debate है, उसमें नहीं घुसेंगे. But and you know how difficult it is. But would love to see you also on the OTT platform. Do you also have your YouTube channel? I'd rather produce, you act. हम लोग एक दिन मिलके ऐसा कुछ कर लेंगे जहाँ पे तू act वो कर ले. I think behind the camera is so much more in control. Where sometimes I feel that too many narratives on with comments, what people think, that decides what an actor chooses. And that's what I feel sometimes you have to get away from, which is very difficult to do. क्योंकि लोग जैसे like even now news people say लोग यही देखना चाहते तो हम यही कर रहे हैं. शायद इसी को तोड़ने के लिए OTT बनाया गया था, लोगों को कुछ और दिखाने के लिए. एंड वो एक एक्टर को एक ब्रेव स्टेप लेना पड़ता है यार. एंड मे बी एज एक्टर प्रोड्यूसर मे बी यू शुड डू दैट. नहीं मैं करने वाला हूँ. एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर. अब जिल्लत की इतनी बारिश हो कि हमको धुलसे गए हैं. भीगा हुआ आदमी बरसात से नहीं डरता. ये मेरे जशन का बहुत पॉपुलर लाइन था. एंड आई स्टिक बाय इट मैन. तो अगर फेल होंगे चलेगा, बट कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे ब्रदर. Definitely for sure. Great to catch up with you. And like I said, इतने Zoom calls में हम लोग लाइटें खरीद लेते. तुम्हारे घर पे इतनी लाइट आती है, कमाल है यार. I love it. Finally there is light at the end of the tunnel. भाई थोड़ी सी रोशनी दिखी है, तो उसे लेने की कोशिश कर रहा हूँ. थोड़ी सी वर्कआउट हो रही है भाई, बहुत रोशनी आ रही है. See you soon, brother. Thank you, brother. Take care. Lovely talking to you, Baba.